but not no other people. So amplifier fragment polymorphism again uses your restriction enzymes. Here we do not go for southern blotting. So here we amplify some regions of the DNA and then check the binding pattern. Again, if a band is present in each and every one, so that will not differentiate between different variants. So that will be a monomorphic band. And if you get binding pattern that's different in different varieties, those bands can be used for determining the difference. So इसमें क्या होता है, to see the principle behind it. For example, you have a DNA fragment again. Okay. Here you use two types of restriction enzymes. You use a rare cutter and you use a frequent cutter. Okay. You use two different kinds of enzymes, a rare cutter and a frequent cutter. A rare cutter is a restriction enzyme that will identify, say, for example, 6 bases or 8 bases. Like, for example, you have EcoR1. Again, I'll give the example of EcoR1. What is the sequence of EcoR1? Recognition sequence of EcoR1? GAATTC. GATTC. GAATTC. So if I write GAATTC here, you tell me after how many base pairs, if I tell you that the GAATTC cuts at position number 1. My question to you for 2 marks is that after how many base pairs will this restriction enzyme cut again? Anyone? 6. 4 is power 6. 4 to the power. Sir, 4 is power 6. हाँ, किसने बोला ये पहले कौन है? 4 Sir, Zainab Nisar. Zainab Nisar plus 2. 4 to the power 6. 4 to the power 6. to the power कहाँ है? 4 to the power हम ऐसे लिखते हैं 6. Okay. So 4 to the power 6 means 4 into 4 into 4 into 4 into 4 into 4. That is equal to 4096 base pair. कितना है? This is not actually correct, but this is probable. कि probability है कि अगर एक base pair पोजीशन नंबर 1 पे काटता है तो the probability कि यही सीक्वेंस डीएनए में दोबारा आएगी will be 4 to the power 6 because 4 are your nucleotide GATC and 6 is the recognition sequence 1 2 3 4 5 6. Okay, तो this we call as a rear cutter. मतलब अगर एक बार काटा फिर 4000 बेस पेयर के बाद काटेगा. Now for example if I tell you there is a restriction enzyme called SAW3A1 GATC को पहचानता है. वो क्या पहचानता है? GATC. अब मेरा सवाल आपसे ये कितने बेस पेयर्स के बाद पहचानेगा? 4 is power 4. गुड. कौन है ये? Sir, Zainab Nisar. ओके गुड. और भी बैकग्राउंड में कौन बोल रहा था? अस्मा रहमान सर. Asma Rahman. So the other base, this GATC SAW3A1 जो restriction enzyme है, ये कितने बेस पेयर के बाद पहचानता है? 256 बेस पेयर्स. अब अगर मेरा क्वेश्चन आपसे है इसमें से फ्रीक्वेंट कटर कौन सा है तो आप लोग क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंट कटर मतलब कि अगर if I give you 1000 base pair strand, 4 cutter will cut it 4 times, but a rear cutter will cut it only 1 times. GATTC will cut it, EcoR1 will cut it 1 times, but SAW3A1 will cut it 4 times. तो इसमें rear cutter कौन हुआ और frequent cutter कौन हुआ? You can use frequent cut. First one है तो Frequent cutter. Frequent. क्या बोल रहे हैं? Hold on a second.
ठीक है इंशाल्लाह फिर चलो थैंक्स है ना मुझे फिर बताएगा कितना so which one is frequent cutter and which one is rear cutter GATC कटर है GATC is frequent cutter क्योंकि बार बार काट रहा है 1000 बेस पेयर में 4 बार काट रहा है and GATTC is रियर कटर rear Rear cutter. cutter. So what we do here, we cut this DNA fragment with both the cutters, frequent cutter as well as rear cutter. Now, for example, frequent cutter, say I'll code with blue color. ठीक है? Frequent cutter ने, for example, oh boy, frequent cutter ने, for example, यहाँ पे काटा. ठीक है? Frequent है तो बार बार काटेगा. ठीक है? यहाँ पे काटा. यहाँ पे काटा. यहाँ पे काटा. ओके 1 2 3 4 बार कोई शक और फिर समझो यहाँ पर भी काटा सो रेड विल बी योर Here's a matching video. रेड विल बी योर गूगल आंटी ऐसा बहुत जानता है कथेशन कराएं इंसान तो वालसा तो हियर विल बी योर frequent cutter okay so this will be in red so for ease of understanding कोई शक अब हमने इसको क्या किया हमने इसको रेयर कटर से भी काटा राइट रेयर कटर विल कीप फॉर द ग्रीन अब मुझे बताइए आप कि रेयर कटर ज्यादा काटेगा कि फ्रीक्वेंट कटर ज्यादा काटेगा फ्रीक्वेंट कटर तो रेयर कट ओ बॉय सो आपका रेयर कटर ने यहां पर काटा से 2 जगह काटा रेयर कटर क्या किया 2 जगह काटा कोई शक यहां तक समझ आ गई आपको बात समझ में आ गई तो क्या प्रिंसिपल है इसमें हम डीएनए फ्रैगमेंट लेते हैं फिलहाल मैं आपको एक कल्टिवर का दिखाऊंगा एक जीनोटाइप का दिखाऊंगा एक वाइल्ड टाइप का दिखाऊंगा फिर हम म्यूटेंट का दिखाएंगे या एक वैरायटी का अभी दिखा रहा हूँ दूसरी वैरायटी का बाद में दिखाऊंगा प्रिंसिपल से सुई कि कोई रेस्टोरेंट साइट या तो बढ़ गई होगी या घट गई होगी जो आपका रेस्टोरेंट फ्रैगमेंट लाइक पॉलीमॉर्फिक का है मगर इसमें हम साउदर्न ब्लॉटिंग नहीं करते हैं वी जनरली गो फॉर पीसीआर एम्प्लीफिकेशन पीसीआर आपको मैंने एक लेक्चर दिया है राइट या दिया है लकात करता है कोलुशूशन यस सर पीसीआर का लेक्चर हमने कोई किया एक लेक्चर हमने दिया ना पीसीआर पर यस सर कब दिया था सर दिया हुआ है एक बार दिया होगा तो कैसी नाम दिया हुआ है सर दिया हुआ सर दिया हुआ है कैसी नाम सर तबस्सुम फातिमा तो करे में -1 बचे गुजार तो एंड आई हैव आल्सो सेंड यू अ YouTube वीडियो यू कैन गो थ्रू इट अगर कोई नहीं समझ आया तो मुझे आप बता सकते हैं ठीक है अब मैं इसको काटूंगा तो कैसे हमें फ्रैगमेंट कैसे मिलेंगे सो आई विल हैव अ फ्रैगमेंट लाइक सॉरी वन फ्रैगमेंट विल बी लाइक दिस राइट है ना फिर आपका दूसरा फ्रैगमेंट ये हो गया ठीक है फिर आपका तीसरा फ्रैगमेंट ये हो गया ठीक है फिर आपका चौथा फ्रैगमेंट ये हो गया ठीक है पांचवा फ्रैगमेंट ये हो गया समझ आ रहा है ना छठा फ्रैगमेंट ये हो गया both the restriction enzyme will cut your DNA okay यहां पर हम ऐसा भी कर सकते हैं यहां पर हम ये भी काट सकते हैं तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड फिर आप बोलेंगे ये कहां गया कोई शक यहां तक समझ आ गई कितने फ्रैगमेंट मिले हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 राइट बट इन रियल सेंस इफ यू रेस्टोरेंट डाइजेस्ट विद इवन आपने पिछली बार इको R1 से काटा तो हमें स्मेयर मिला था राइट एंड देन इवन इफ यू cut it without now you are cutting with 2 restriction enzymes so you will again get a smear
You'll not be able to differentiate between these two. Now, if you see these each fragment separately, you will see that क्या देखेंगे आप कि इसके एक साइड पर फ्रीक्वेंट कटर ने काटा है, राइट, इस फ्रैगमेंट की, एंड दूसरे साइड पे भी फ्रीक्वेंट कटर ने काटा है. कोई शक? सुना फ्रीक्वेंट कटर ने काटा है. नाउ ये यहाँ पर कट गया, तो इस साइड भी इसको फ्रीक्वेंट कटर ने काटा है क्योंकि ये रेशनल साइड सेम है. ये यहाँ से कट गया है, ये यहाँ से कट गया है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिनट वीडियो स्टॉप करता हूँ. फॉर एग्जांपल यू हैव अ डीएनए मॉलिक्यूल. ओके, मेरी कैंची ले गए लोग. Okay, this is a DNA molecule. So this is EcoR1 enzyme. I am cutting it यहाँ पर बीच में, ठीक है, मैंने यहाँ पर काटा, इसको काटा ना. मुझे आप अब एक बात बताइए, ये वाला एंड किसने काटा? फ्रीक्वेंट कटर। EcoR1 जो यहाँ पर आपका है कि ये दिस इज योर EcoR1. ओके, इसने यहाँ से काटा. आप मुझे बताइए ये वाला किसने काटा, इसका ये वाला एंड? EcoR1 में स्प्लिट इतना एक ही एंजाइम चुटमुट. तो अगर ये फ्रीक्वेंट कटर ने काटा होगा तो दोनों साइड में आपका फ्रीक्वेंट कटर है. आप समझ रहे हैं बात को? इसी तरह यहां पर अगर इस एंजाइम ने काटा, दैट मींस कि इसका ये वाला एंड इज अ फ्रीक्वेंट कटर ने काटा, ये वाला एंड भी इसका फ्रीक्वेंट कटर ने काटा है, इस वाले फ्रैगमेंट, राइट. इस केस में भी ये वाला एंड किसने काटा? रियर कटर ने. और ये वाला एंड भी इस फ्रैगमेंट का ये एंड रियर कटर ने काटा, ये इस केस में इसने ये वाला एंड किसने काटा? इसने, रियर कटर ने. एंड ये वाला एंड, कैन यू टेल मी ये वाला एंड किसने काटा है? frequent cutter. फ्रीक्वेंट कटर. व्हाट अबाउट दिस एंड? Frequent cutter. Frequent cutter. फ्रीक्वेंट Good. What about this one? फ्रीक्वेंट Good. What about this one? frequent cutter, What about this one? रेयर कट rear cutter, शाबाश, समझ आ रही बात. What about this one? रेयर कटर rear cutter, Good. What about this one? Frequent cutter. फ्रीक्वेंट What about this one? फ्रीक्वेंट Frequent. What about this one? Frequent. What about this one? Frequent cutter. What about this one? Frequent. So now you see that जो आपको fragments मिले हैं, the fragments that you have obtained, वो तो या तो वो ऐसे है कि उनको दोनों साइड से फ्रीक्वेंट कटर ने काटा है, राइट, या ऐसे है एक साइड से फ्रीक्वेंट कटर ने काटा है, दूसरे साइड से रियर कटर ने काटा है ना, राइट. इसमें भी एक साइड से फ्रीक्वेंट कटर ने काटा है, एक साइड से रियर कटर ने काटा है. इस केस में क्या है बताओ? दोनों frequent. दोनों sides से frequent. frequent What about cutter. this one? Frequent and rear cutter. Good. This one? फ्रीक्वेंट Frequent and rear. This one? Frequent cutter ने दोनों साइड से. This one? Frequent cutter. Good. So that means you have either those fragments that are on both sides cut by a frequent cutter, or you have fragments that in which either you have been cut by a frequent cutter or a rear cutter. ऐसा भी हो सकता है कि दोनों साइड फ्रीक्वेंट कटर ने, रियर कटर ने काटा हो, ऐसा भी हो सकता है, मगर यहाँ पर हमने वो केस नहीं दिखाया. अगर आप दिखाना चाहते हैं वो केस तो हम ऐसा कर सकते हैं. You can do one thing. We'll extrapolate this line like this. I know that will confuse you, but still I want to show you. Extrapolate this line. Oops. Go na here. Then what you do if you have, say, ऐसा भी हो सकता है
यहाँ पर भी फ्रीक्वेंट कटर ने काटा है, यहाँ पर भी। सो यू हैव एक्स्ट्रा 2 फ्रैगमेंट्स, एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, ठीक है। इसको क्या होगा अब इसका बताइए जरा, इस वाले फ्रैगमेंट का। दोनों को ये फ्रीक्वेंट कट करेगा, फ्रीक्वेंट कटर। कैसे, यहाँ से फ्रीक्वेंट, यहाँ से तो रेयर है, रेयर है यहाँ से। यहाँ से रेयर है और ये भी रेयर है। सो ये कंडीशन भी आपके पास हो सकती है कि दोनों साइड रेयर ने काटा हो, या यू हैव अ कंडीशन इन विच बोथ साइड्स यू हैव अ फ्रीक्वेंट कटर, और यू हैव अ कंडीशन इन विच बोथ कैन बी पॉसिबल। आइदर 5 प्राइम पर रेयर ने काटा है और 3 प्राइम पे फ्रीक्वेंट ने काटा, और वाइस वर्सा। 5 प्राइम is cut by a rare cutter and 3 prime is cut by a frequent cutter, or vice versa. So now what we do, second thing is that we use adapters here. क्या करते हैं, adapter आपने कभी यूज किया है? adapter क्या है वो? What is an adapter? कोई बता सकता मुझे adapter क्या होता है? TRN ही होता है सर। TRN वो तो रॉकटेस का सर, उसको TRN मॉलिक्यूल होता है ना सर TRN। नहीं वो प्रोटीन सिंथेसिस में है, वो सुतराव्स। आई एम नॉट टॉकिंग, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस इज नॉट इन योर सिलेबस। आई एम टेलिंग यू न्यूक्लियोटाइड कलेक्शन होती है। हाँ, न्यूक्लियोटाइड कलेक्शन। okay, I will show you a photograph here. Let me share my screen. Stop share and share again. Okay. Do you see this picture? Do you see these purple and pink DNA molecules? Yes sir. Adapters are nothing but they are double-stranded DNA molecules. Okay, छोटे होते हैं. Okay, and you can simply ligate them with your DNA. ठीक है, मगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपके इको R1 ने काटा है, लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल. ओके, कैन यू सी मी? कैन यू सी मी? ओके, so if you Gmail, so let me see where I kept them. For example, say this is a DNA molecule. Let me bind it. Gmail. Say for example this is your DNA molecule, okay, and आपने इसको काटा है, resistant enzyme, so you will have sticky ends, right? You will have sticky ends. You know what sticky ends? We have studied resistant enzymes, right? है ना, पढ़ा है हमने, पढ़ा है resistant Yes, sir. enzymes. क्या होता है sticky ends और क्या होता है blunt ends? अगर resistant enzyme this is a registration site, दिख रहा है? अगर एक registration enzyme ऐसे काटता है बराबर, this will be your blunt end. मगर अगर वो ऐसे काटता है, resistance sites are palindromic sites, ठीक है, जो एक स्टैंड पर होता है वो दूसरे स्टैंड, अगर आप पढ़ेंगे GATTC, दूसरे स्टैंड पर भी GATTC है, बट इन रिवर्स डायरेक्शन, बिकॉज
इस स्ट्रैंड का जो डायरेक्शन है वो 5 प्राइम 3 प्राइम ऐसे है और दूसरे का अपोजिट, दिस स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल. ओके, सो द एंड यू विल गेट हियर will be like this. This will be your Sticky end. sticky end. Exactly. Now, for example, if I tell you if I tell you ये आपका डीएनए है जिसको आपने एक साइड से रेयर कटर से काटा है. आपका एडाप्टर मॉलिक्यूल विल बी स्टिकिंग टू योर रेयर कटर और ये सीक्वेंस आपस में बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री है. दिख रही है आपको? सो दीज स्टिकी एंड्स, अगर मैं एक डीएनए फ्रैगमेंट इक्वार 1 से काटूं, दूसरा एक फ्रैगमेंट भी डीएनए इक्वार 1 से काटूं, द एंड दैट इट प्रोड्यूसेस आर कंपैटिबल. जैसे फॉर एग्जांपल जान के ये प्लग कंपैटिबल विद तिम सॉकेट्स, मगर आजकल तिम होम प्लग्स कम. होल्ड ऑन अ सेकंड. For example, do you see this difference between this and this? इसमें Yes, फर्क sir. नजर आ रहा है आपको? Yes, sir. आपको इसमें से फर्क नजर आ रहा है? Yes, Can you? sir. हाँ? क्या फर्क है बताओ मुझे? So उसको सर्कुलर है, वो सिलेंड्रिकल, और इसको ये सॉकेट में नहीं लगेगा वो व्हाइट वाला. Compatible Exactly. नहीं होगा. Good. So compatible नहीं है. क्या है? That's a good word you have used, that it is not compatible. अगर वहीं मैं छु बनाऊं ये compatible with क्या? सुचस में गसने खतरे. एक Yes, कॉपी. sir. So if I have to make it compatible, ये मा गस हुत मज देसी सुचस मज, ये छु सोन देसी सुच, ठीक है? Yes, sir. बाहर आ जाएंगे यूएस यूरोप, दे हैव काइंड ऑफ दीज. वन छु अगर मैं कंपैटिबल बनाऊं मैं छु Yes, sir. अडैप्टर होने क्या ये अडैप्टर अगर भी अच्छा लगाओ ना ये तो छु ये Yes. अडैप्टर क्या छु ये छु अडैप्टर वन गस ये देसी सुचस मज गस ना. नाउ इट्स अ देसी सुच, इट विल गो, but this time it will not go. So this is compatible with our socket. Shuna? To make this compatible we use a adapter. So इसी तरह जो आपकी जो restriction enzymes, restriction sites है, when you cut it with the same restriction enzyme they will be compatible, they will form compatible ends और ये आपस में फिर से जुड़ सकते हैं. तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, you have adapters. हम दो तरीके के अडेप्टर यूज करते हैं, एक जो फ्रीक्वेंट कटर को जुड़े, एक जो रेयर कटर को जुड़े. क्योंकि फ्रीक्वेंट कटर से इक्वार-1 से आपका SAW3A1 एंजाइम है. SAW3A1 has been isolated from Staphylococcus aureus, third enzyme A1 strain. Okay, EcoR1 has been obtained from anyone? So E. coli. E. coli. Escherichia coli. R strain was the first enzyme that was isolated from EcoR1. So अब क्या होगा, ये स्टोन अडेप्टर, दिस जस्ट अडेप्टर इज नथिंग बट अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल. एक साइड पे उस पर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होती है तो योर साइड जो आपने किया है, हमने EcoR1 काटा है तो EcoR1 अडेप्टर, दूसरे साइड से अगर इसको डायमेंशनल SAW3A1 लगता है तो SAW3A1 अडेप्टर. ओके, तो इफ वी गो बैक इन शेयरिंग आवर स्क्रीन, you can see here
that you use two types of adapters. One that will ligate to your frequent cutter and one that will ligate to your rear cutter end. Okay? ठीक है, कोई शक? This adapter is nothing but 10 to 15 base pair long nucleotide. और यह ऐसा होता है, और यह ऐसा होता है, ठीक है? यहाँ से भी डीएनए स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड, यहाँ से दूसरा स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड छोटा होता है, एक स्ट्रैंड बड़ा होता है। ये जो यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंड होता है, दैट विल लाइगेट टू योर डीएनए मॉलिक्यूल। किसी को सबको समझ आ रहा है? किसी को कोई सवाल हो यहाँ पर नहीं समझ आ रहा हो? If you have not attended my restriction enzyme lecture, you will probably not understand it. सर एडाप्टर्स हम 3' पे लगाएंगे कि 5' एंड पे? Both sides. तो डीएनए को तो 3, ये 3 एंड, ये 5 एंड, ये 3 एंड, ये 5 एंड। जो आपका डीएनए है इसको भी 3-5 एंड, ये देख रहे हो तुम? तो टेक्निकली स्पीकिंग बोथ एंड्स। मगर क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा इसलिए है, ये आपको आगे पता चलेगा। यू स्टे। तुम्हारा क्या नाम है? व्हाट्स योर नेम? ना क्या चीज है? वही दाम। हेलो, okay, whatever. So now what we do, now you see your adapters will bind to your DNA molecules on both sides. Say for example, you have one fragment, two fragment, three fragment. Ten fragments here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10 fragments you have. Okay. Now these adapter molecules you have two types of adapter molecules, right? एक आपके frequent adapter पे कटेगा, जुड़ेगा, एक आपके rear cutter पे जुड़ेगा. So you have, if we design it in say other color, this is your frequent adapter. Okay, this is your adapter. One, two, three. These are your adapters, okay? 4. One, two, three, 4, 1, 2. Hold on a second. This is your 10th fragment, okay? Now you have 1, 2, 3, 4. Then you have 5. Okay. You have 6. ये थोड़ा मैं बड़ा बना रहा हूँ, मगर ये डीएनए फ्रैगमेंट है, ये बराबर इसमें टोपोलॉजी जो होगी उसको मतलब सेम एडजस्टेंट होगी. दिख रहा बड़ा है, बड़ा है नहीं है, ठीक है. 8, 9, 10. You have 8 here. 8 is here. 9 is here. Then say you have adapter. यहाँ पर आपका दूसरा adapter जुड़ गया. Okay. यहाँ पर आपका दूसरा adapter जुड़ेगा. यहाँ पर आपका दूसरा. Now, did you see what is the difference? Your frequent cutter पे आपका एक adapter जुड़ा and आपके rear cutter पे आपका दूसरा adapter जुड़ा.
कोई शक? क्योंकि अगर रेयर कटर है, GATTC है, ओके, रेयर कटर है, तो ये अडेप्टर जिसमें GATTC साइट होगी वो यहां पर जुड़ेगा। थोड़ा ना, सो आपका अगर रेयर कटर है GATTC, जो इसका दूसरा अडेप्टर वो यहां पर जुड़ेगा। जो GATC है आपका SAW3A1, दैट्स अ फ्रीक्वेंट कटर, वो यहां पर नहीं जुड़ेगा क्योंकि सीक्वेंस कंप्लीमेंट्री नहीं है। ओके, बिकॉज दीज so ends are not compatible in that case. Ends are not compatible in that case. Okay. Now what we do, we take this mixture and we run a PCR. मगर PCR में आपको पता है prerequisites of a PCR होते हैं। जरा मुझे बताइए क्या क्या होते हैं? Ligase. Ligase. Technology. What's your name? नाम तो बताओ। देखो गलत हो doesn't matter. At least you have the guts to speak. That's a good thing. You have the guts to speak. ये मीज़ान Sir, we have ये मीज़ान अयूब, why are you sleeping? समझ बीमार? मीज़ान अयूब, एंड एक गाय बैल के तपेले में कौन है? आवाज आ रही पीछे से। हाँ? बताइए क्या पूछा मैंने? टेम्पलेट DNTPs प्राइमर टैग, मतलब कोई भी पॉलीमरेज, हम टैग पॉलीमरेज भी ले सकते हैं, और बफर चाहिए, और कभी कभार हम मिनरल ऑयल भी ले सकते हैं। तो वी नीड प्राइमर्स। व्हाट वी नीड? प्राइमर्स आर नथिंग बट, मैं आपको बताता हूं एग्जांपल। इफ वी वांट टू एम्पलीफाई अ DNA फ्रैगमेंट, हमें उसके लिए दो प्राइमर चाहिए, एक तो फॉरवर्ड प्राइमर चाहिए और रिवर्स प्राइमर चाहिए। इफ यू सी ऑन दिस स्क्रीन दैट आई एम शेयरिंग, you have, because you have two strands of DNA, okay, या फॉर एग्जांपल 3 प्राइम यहां पर है और 5 प्राइम यहां पर है, राइट? या 3 प्राइम येतथ and 5 प्राइम येतथ, right? Now when we add primers will be to the flanking regions. तो ये गए फॉरवर्ड प्राइमर, this we call as a forward primer, okay? और जो स्ट्रैंड बनाएगा इसका जो 5 प्राइम यहां पर होगा, 3 प्राइम यहां पर होगा। एक्सटेंशन हमेशा 3 प्राइम से होगा, बिकॉज 3 प्राइम में will have an OH that will act as a start point. तो ये DNA जो होगा ये रेप्लिकेट टैग पॉलीमरेज से ऐसे होगा, यहां तक ऐसे। दूसरा प्राइमर हम यूज करते हैं रिवर्स प्राइमर, जो इस एंड पर लगेगा, या उसका भी 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में हमेशा रेप्लिकेशन होती है, तो ये ट्रेंड ऐसे बनाएगा। So there are always two primers in your PCR reaction. One is a forward, one is a, if you only have one primer, the amplification will not be complete. Only one of the strands will amplify. दूसरा बनने की, तो आप जब DNA रन करेंगे आपको स्मीयर दिखाई देगा। मगर सिंगल प्राइमर भी हम यूज करते हैं। इफ यू रिमेंबर PCR लेक्चर, वहां पर आपका सीक्वेंसिंग में हम सिंगल प्राइमर यूज करते हैं, और बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक है जिनमें हम सिंगल प्राइमर यूज करते हैं। बट हियर यू हैव टू यूज 2 प्राइमर्स। अब हम क्या करते हैं, यहां पर हम फ्रीक्वेंट कटर अडेप्टर के लिए फॉरवर्ड प्राइमर यूज करते हैं और रिवर्स प्राइमर करते हैं रेयर कटर के लिए यूज। ठीक है, दैट मींस कि अगर फ्रीक्वेंट कटर फॉरवर्ड प्राइमर लग गया और वो 5 प्राइम पर है, यहां पर है, तो वो स्ट्रैंड एम्पलीफाई करेगा। और अगर दूसरा रेयर एंड पर जुड़ गया और वो दूसरे साइड को एम्पलीफाई करेगा, दैट मींस योर एम्पलीफिकेशन विल बी कंप्लीट। हाउएवर इफ ओनली वन प्राइमर बाइंड्स, इट विल नॉट एम्पलीफाई। अगर आप अपने फ्रैगमेंट्स को देखेंगे नजदीक से, ये
दिस इज योर अडेप्टर दैट इज बाउंड टू योर रियर कटर। हमने क्या किया, फॉरवर्ड प्राइमर फॉर फ्रीक्वेंट कटर, फॉरवर्ड प्राइमर फॉर frequent cutter and reverse primer for rear cutter. Now what will happen, जो ये फॉरवर्ड प्राइमर लगेगा ये लग इस पोइट लग ना, मगर ये साइड चुना थी यहाँ पर फ्रीक्वेंट कटर, तो ये भी यहाँ पर लगेगा ऐसे। तो अगर इसकी एम्पलीफिकेशन होगी, ये गैस ने कंप्लीट किया है, क्या इसके दोनों एक ही डायरेक्शन में है। एम्पलीफिकेशन होने के लिए फॉरवर्ड प्राइमर ऐसे जुड़ना चाहिए, रिवर्स प्राइमर दूसरे स्टैंड में ऐसे जुड़ना चाहिए। इस केस में, सेकंड केस में फॉरवर्ड प्राइमर ऐसे जुड़ेगा एंड रिवर्स प्राइमर जो है रियर प्राइमर का वो ऐसे जुड़ेगा। तो ये एक प्लॉजिबल एम्पलीकॉन है यहाँ पर। इस केस में ये वाला प्राइमर ऐसे जुड़ेगा और इसके ये एम्पलीफिकेशन नहीं होगी, क्योंकि एम्पलीफिकेशन गलत डायरेक्शन में जुड़ गया आपका प्राइमर। ठीक है, इस केस में भी अगेन फॉरवर्ड विल जुड़ेगा ऐसे एंड फॉरवर्ड अगेन ऐसे जुड़ेगा, तो ये भी एम्पलीफाई नहीं करेगा। इसमें फॉरवर्ड ऐसे जुड़ेगा और रियर ऐसे जुड़ेगा। दिस इज अ प्लॉजिबल एम्पलीकॉन। इसमें रियर ऐसे जुड़ेगा, फॉरवर्ड ऐसे जुड़ेगा। ओके, बात समझ आ रही है आप लोगों को? इस केस में भी फॉरवर्ड ऐसे जुड़ेगा, फॉरवर्ड ऐसे जुड़ेगा। इस केस में फॉरवर्ड ऐसे जुड़ेगा। आप बताइए जरा इसमें क्या जुड़ेगा, फॉरवर्ड किस डायरेक्शन में? एनीवन? इस केस में फॉरवर्ड ऐसे जुड़ेगा और रिवर्स ऐसे जुड़ेगा। इस केस में रिवर्स ऐसे जुड़ेगा एंड रिवर्स ऐसे जुड़ेगा। सो नाउ व्हेन यू रन अ पीसीआर रिएक्शन, कौन से फ्रैगमेंट एम्पलीफाई होंगे? जिनमें फॉरवर्ड पे फ्रीक्वेंट कटर हो और रिवर्स पे रियर कटर हो, तो ओनली दोज फ्रैगमेंट्स विल एम्पलीफाई। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, इफ दिस इज 1, दिस इज 2, फॉर 2 marks 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Okay, now if my question to you is, which of these fragments will be amplified when you run a PCR reaction? 2, 9, second and third. 259. 2, 9, 5. 2, 9, 5. 5. 295. 2, 295. 9, 95. 5. 5. 5. Okay. 6. 6 guys क्या ना? No, 6 of which primer should reverse direction. Only 2, 5 Yes, and 9. Only 2, 5 and 9. Good. ये किसने बोला? 2 लोग ने बोला। मुझे जरा बताओ। आरिफ, CR, ताबीना हिलाल। आरिफ और सर ताबीना हिलाल। साबीना हिलाल। Remind me, okay? So now only those fragments. आप देखो, आपने जब restraint direction किया, you have a smear. You cannot identify the difference between two variants. Now you only have 3 fragments when you run a gel. If I run a gel here for this issue, well, you will have 3 fragments, 1, 2, and 3, right? One will be of this, depending upon the size. कि इसका size कितना है? Say for example, इसका size, for example, say इसका size 800 base pair है, okay? इसका size 1000 base pair है, okay? इसका size 1500 base pair है. So that means you will have one fragment. सबसे ऊपर कौन सा होगा इन तीनों में से? ये वाला कौन सा होगा? 1500. 1500 वाला। गुड। ये पहले किसने बोला? महक. ताबीना। साबिना हिलाल? नहीं, पहले साबिना हिलाल। गुड। दूसरा कौन सा होगा? 1000 वाला। 6000। 1000 वाला। गुड। एंड तीसरा? 800. 800. So you will have 3 discrete fragments. अब फॉर एग्जाम्पल मेरा क्वेश्चन आपसे है, क्या ऐसा हो सकता है अगर हमने कोई वैरायटी दूसरी ली, उसमें म्यूटेशन से कोई रेजिस्टेंस साइड बढ़ गई या कम हो गई? ऐसा हो सकता है? Yes, sir. Why not? Why Yes, not? sir. Exactly. Good. या बन सकती है या रेजिस्टेंस साइड गायब हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अब आपको मैं कहूं कि
ये वाली रेस्टिनेशन साइट हंसा गई गिगअप कोस, ये वाली रेस्टिनेशन साइट गई गिगअप। दैट मींस आपका जो रेयर कटर है उसने यहाँ पर भी नहीं काटा। फिर आपको कितने बैंड मिलेंगे? एक, 2 कितने, कौन कौन सा? एक तो ये वाला 2 and 9 2 and 9. 9. So you will have only 2 and 9. 2 is your yes sir 2 and 9, 3 or 9, 3 and 9. Yeah, 3. So 2 or 9. 3 and 9. 2 and 9. Okay, that's right. 2 and 9. So ये 800 ये वाला है. So you will have 800 base pair fragment and your 1500 base pair 1500. fragment. 1500. So you will have only two fragments, 2 base. तो क्या आप इनको आपस में पहचान सकते हैं कि कौन हाई यील्डिंग है, कौन लो यील्डिंग है? यस सर, कंपेयर कर सकते हैं हम। कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि याची 3 बैंड याची 2 बैंड, सुना? यस सर, रेफरेंस। Yes, sir. Good. So this is the concept of your amplified fragment length polymorphism. किसी को कोई सवाल या शक? सर जो RLFP उस पे भी हम करते हैं लेंथ चेक, उसमें भी हम करते हैं लेंथ, इसमें भी लेंथ चेक करते हैं। इसमें और इसमें क्या फर्क है सर? उसमें हम साउदर्न ब्लॉटिंग करते हैं, उसमें हम स्टैंडर्डाइजेशन के बाद डायरेक्टली प्रोब यूज करते हैं। इसमें प्रोब की जरूरत नहीं होती। प्रोब्स आर कॉस्टली, प्रोब्स में परेशानी है, प्रोब्स में फ्लोरेसेंट करना है, देन यू शुड हैव अ डार्क रूम, फिर आपको ब्लॉटिंग अपैरेटस चाहिए, सु छ बड़ लेंथी टीडियस प्रोसेस। यह सहल रेशनडाइन को प्रोब कर मिक्स लाइगेशन रात सो टू वसन सुबह चलो पीसीआर तो वुच रिजल्ट। सो इट्स वेरी, दैट्स अ वेरी रॉबस्ट टेक्निक एंड वेरी कम्बरसम। दिस इज वेरी इजी। पीसीआर बेस्ड टेक्निक्स ऑलमोस्ट आर ऑलवेज इजी। तो उसमें साउदर्न ब्लॉटिंग करते हैं, इसमें नहीं करते हैं। बात समझ में आ रही है आपको?